Hello everyone. In this video we will find the Laplace transform of some functions like step function, ramp function, exponential function. Actually, Laplace transform is used to convert time domain function into frequency domain function. Time domain function into frequency domain function. टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस आसान होता है सिग्नल की। तो यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कोई फंक्शन एफ टी ये टाइम डोमेन फंक्शन है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। Laplace transform is also used to solve the electrical circuit problems. Suppose that we have a time domain function ft. Ft is the time domain function and we want to convert it into the transform it into the frequency domain function. So we can take Laplace transform of this function. Laplace transform of ft can be written as integration 0 minus to infinity ft e the power minus st dt. In this expression, S is the complex frequency. S is the complex frequency and it is equal to sigma plus j omega. Means complex frequency S has two parts, real part and imaginary part. The real part is known as Napier frequency and this part describes the exponential rise, exponential decay in the signal, and imaginary part here omega is the radian frequency. It describes the oscillations in the signal. If ft is impulse function or derivative of impulse function, then we need to take integration limit from 0 minus to infinity. Otherwise, we take the limit from 0 to infinity. For other function, the limit is 0 to infinity. Now we will find the Laplace transform of step function, second ramp function,
and third exponential function means ft is the e the power minus a t. तो हम इन तीनों फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। स्टेप फंक्शन step function is defined as f of t equals 0 for t less or equal 0, लेस देन 0 रखते हैं, एंड इट इज k for t greater or equal to. Step function is defined as 0 for t less than 0 and k for t greater or equal 0. So we will find the Laplace transform of ft like this. Integration 0 to infinity ft e the power minus st dt. 0 to infinity. At the place of ft, we will write k, and then e the power minus st dt. Now we will integrate this k and e the power minus st upon minus s and limit from 0 to infinity. हमने k e द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी पुट कर दिया। So Laplace transform of ft, where ft is the step function, can be written as k. Now we will put the upper limit infinity at the place of t, तो ये हो जाएगा e द पावर माइनस इंफिनिटी। Then lower limit, then at the place of t write 0, तो e the power 0 हो जाएगा upon minus s k upon minus s e the power infinity equals 0, e the power 0 equals 1. So it will be k upon s. In this way we have find the Laplace transform of step function k upon s. इस तरह से हमने स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया। अब हम लोग रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे।
रैंप function. You already know a ramp function can be defined as ft equals 0 for t less than 0 and ft equals kt for t greater or equal 0. इस तरह से हम रैंप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से फाइंड करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी where ft is the kt for t greater or equal 0 मीन 0 to infinity के लिए अब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to infinity ft e the power minus st dt 0 to infinity at the place of ft we will write kt, so kt e the power minus st dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। के कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ई द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, तो ई द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो टी का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1 होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ई द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस टू डी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले अपर लिमिट रखेंगे एट द प्लेस ऑफ टी इंफिनिटी, तो यहाँ पे इंफिनिटी इंटू ई द पावर माइनस, टी के जगह पे इंफिनिटी रखेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। देन लोअर लिमिट एट द प्लेस ऑफ टी विल राइट 0, देन दिस टर्म विल बी 0 अपॉन माइनस एस। हमने फर्स्ट टर्म में लिमिट प्लेस कर दिया जो कि 0 टू इन्फिनिटी था। अब सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, तो ये माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, और इसका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इस तरह से हमने इस टर्म में लिमिट पुट कर दिया 0 टू इन्फिनिटी, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया।
के ई द पावर माइनस इन्फिनिटी, आप जानते हैं कि ये जीरो होता है, तो जीरो माइनस जीरो, ये टर्म फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा। और इसमें हमें लिमिट पुट करना है, ई द पावर, यहाँ टी एट द प्लेस ऑफ टी राइट इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये ई द पावर जीरो हो जाएगा अपॉन माइनस एस स्क्वायर के ई द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, ई द पावर जीरो वन अपॉन माइनस एस स्क्वायर। तो इस तरह से रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये के अपॉन एस स्क्वायर। तो ये रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इस तरह से हमने स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, और अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं। ई द पावर माइनस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई द पावर माइनस एटी, you can write 0 to infinity, integration from 0 to infinity e the power minus 80 into e the power minus st dt। सो 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ e द पावर को कंबाइन कर देंगे, सो e द पावर माइनस a प्लस एस टी हो जाएगा इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा ई द पावर, इसको s पहले लिख देते हैं, s प्लस ए अपान माइनस एस प्लस ए टी जीरो टू इन्फिनिटी। हमने ई द पावर माइनस ए प्लस एस टी का इंटीग्रेशन किया है, तो ये ई द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस प्लस ए आया है, क्योंकि ई द पावर माइनस ए टी का इंटीग्रेशन ई द पावर माइनस ए टी अपॉन माइनस ए होता है, उसी से हमने ये लिखा है। अब हमको लिमिट पुट करनी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई द पावर माइनस ए टी इक्वल्स, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ टी, जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये ई द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, टी के जगह पे जब जीरो रखेंगे यहाँ तो ई द पावर जीरो हो जाएगा अपॉन माइनस एस प्लस ए। ई द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो और ई द पावर जीरो वन अपॉन माइनस एस प्लस ए
So Laplace transform of e the power minus at equals 1 upon s plus a. तो इस तरह से हमने स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किए। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जनरली यूज करते हैं टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि उसका एनालिसिस इजी हो। इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड।